How to overcome ego. If you believe that you're an egoistic person and you want to work on yourself, you want to work on your egos, then this video will help you out on how to overcome your egos. Hello beautiful souls, मैं हूँ बिथिका. Welcome to Divine Healing YouTube channel. ईगो हम सभी में होता है. ईगो एक सरफेस लेवल में हमारे जो बॉडी है, जो सटल बॉडीज हैं, उसमें एक like a curtain it comes in front of us in all aspects of our life. Ego of being superior, ego of feeling I am always right, ego of achievements. So ego comes in variety of forms. Now, if you are somebody who feels like your life is all hell because of your egos and you want to work on yourself, there are souls who actually want to work on whatever is, bringing them down, pulling them down. And if you have recognized that ego is one of it, then in this video, I will share with you some practical things that you can do, that you can practice mindfully, and you can overcome your egoistic problem. Let's begin with number 1. Stop being offended. Egoistic people have this very prominent aspect, which is getting offended even in small little things. छोटे छोटे बातों पे लोगों को वो लोग offend हो जाते हैं, बहुत पर्सनली ले लेते कुछ भी चीज़ों को, क्योंकि ईगो सामने आ जाता है. तो stop feeling offended and you see, if you start practicing mindfully, कुछ offended बात आ रही है आपके सामने, लेकिन आपने सोच लिया है कि मैं अपनी ईगो पे काम करूँगी and मैं offend नहीं होंगी. Simply, your ego problem will start depleting when you stop getting offended even at small little things to bigger things. Number 2, let go of your need to win every situation. So egoistic people have these traits that they want to win everything. It can be a competition, it can be an argument, it can be anything. They always have this focus that जो भी हो रहा है, I have to win this. मुझे जीतना है. और इसके चक्कर में ना हम अपने रिश्तों में भी खटास लेके आ जाते हैं. हमें जीतना है. हम पार्टनर से बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, हमको जीतना है. ईगो इज कम्स इन दिस वे, जब आपको हर एक सिचुएशन में आपको लगेगा कि मैं ही सही हूँ और मुझे ही जीतना है. सो लेट गो ऑफ दैट नीड टू विन एवरी सिचुएशन. नंबर 3, लेट गो ऑफ दैट नीड टू फील सुपीरियर ऑल द टाइम. Maybe you have done a lot of things in life, maybe you have a family background like that, and you feel superior. But that actually not a superiority, that's your ego that comes up. अब किसी को भी देखते हो ना तो अपने आप से कंपेयर कर देते हो कि हाँ मैं तो इससे बेहतर हूँ, मैं तो उससे बेहतर हूँ, मैं तो उससे अमीर हूँ, सुंदर हूँ, ये हूँ. You compare with others, and then what happened is you feed yourself that I'm superior. And when you do this kind of stuff, you actually feed a lot of ego in you. So let go of that need to feel superior in every situation. It's okay to be inferior. It's okay to be no superior, no inferior. It's okay to be normal. Number 4, stop comparing yourself with others. So in this game of superiority and winning, what happens is basically you're comparing others. आप superior win कब करोगे? जब आपके सामने कोई और second person है, तो आप कंपेयर करते हो अपने आप को कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी सुपीरियर हूँ, मैं कितनी ये हूँ, वो हूँ. एंड देन वो कंपैरिजन करते हुए अपने आप की जो ईगो है ना, उसको आप खिला पिला के यू फीड योर ईगो by comparing yourself with others. So if you want to really work on it, you will have to stop comparing yourself with others. Number 5, care less about your reputation and care more about your character. जब आप अपनी रेपुटेशन के बारे में ज़्यादा ध्यान ना देकर अपने कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा ध्यान दोगे, उस पे काम करोगे, आपकी रेपुटेशन ऑटोमेटिकली विल बी परफेक्ट. जब आप अपनी रेपुटेशन को ठीक करने के लिए, रेपुटेशन को स्टडी रखने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो. किसी के दिल भी दुखा सकते हो, अपनी ईगो को बढ़ा सकते हो, लेकिन उसको ध्यान से हटा के अपनी जो कैरेक्टर है उसमें बारीकी लाओ. क्या क्या सुधार करना ज़रूरी है कैरेक्टर में, उसमें फोकस करो, ईगो अपने आप भाग जाएगा. नंबर 6, स्टॉप लिसनिंग टू रिप्लाई, स्टार्ट लिसनिंग to hear and observe. If you really want to work on your egos,
सुनना स्टार्ट कर दो, उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने के लिए, समझने के लिए, ना कि रिप्लाई करने के लिए। जो लोग बहुत इगोइस्टिक होते हैं ना, जिनको लगता है कि मैं क्या हूँ, उन लोगों का है कि वो कभी भी आपकी बात सुनेंगे, दे विल लिसन टू इट बिकॉज दे वॉन्ट टू रिप्लाई। उनको तभी कुछ बोलना है, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि उनको सब कुछ पता है, दे नो एवरीथिंग। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, उनका आंसर उसको पता है। कभी कभी इस ईगो के चक्कर में सामने वाला कुछ अच्छा भी बोल रहा है ना, उसके दिमाग में वो नहीं जाएगा। ही और शी विल मोस्टली फोकस ऑन इसको रिप्लाई क्या करना है। यही चीज़ मोस्ट पीपल डू इन यूट्यूब वीडियोज़ ऑल्सो। when they watch videos like the content I make or certain kind of contents, वो देखते देखते ही इतना कमेंट कर देंगे, मोस्टली ईगोइस्टिक कमेंट कर देंगे, पूरा चीज़ सुनेंगे भी नहीं। तो ये रिफ्लेक्शन होता है ईगो का। तो अगर आपको ईगो पे काम करना है तो लोगों की बात सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए। इसलिए मत सुनिए क्योंकि यू हैव टू रिप्लाई टू देम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 7, stop identifying yourself with your achievement. Keep your feet on the ground. जो लोग बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, जहाँ से इन लोगों का ईगो आता है, वो है अपने अचीवमेंट को देखकर। क्या आपको पता है, जो एक असली सक्सेसफुल और पर्सन जिसने अचीवमेंट किया है लाइफ में, एक्चुअल में, वो लोग बहुत हम्बल होते हैं, बहुत ग्राउंडेड होते हैं। क्योंकि अचीवमेंट के बाद उन लोगों को असली में पता चलता है कि इट्स नॉट अबाउट द अचीवमेंट that defines who I am, it's about the person I am after the achievements. और जो लोग ये चीज़ कर नहीं पाते, वो अचीवमेंट, वो सक्सेस, वो लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं, वो लोग गिर जाते हैं। और ईगो का काम वही है, आपको गिराना जिंदगी में। आपको पहले बहुत ऊपर उठाएंगे आपके ईगो, फिर आप ही को एक 10 स्टोरीड बिल्डिंग से गिरा देंगे। तो अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो अपने अचीवमेंट के लिए कि देखो मैंने कितना मार्क्स लाया स्कूल में, कॉलेज में, मैंने कितना डिग्रीज हासिल किया, मैं एक बड़ी सी कंपनी में ऐसे जॉब करती हूँ, ऐसे अपनी बिजनेस करती हूँ, इतना पैसा कमाती हूँ। अगर इस अचीवमेंट से अपने आप को आप फॉर्मुलेट कर रहे हो, अपने कैरेक्टर को फॉर्मुलेट कर रहे हो, तो आप अपनी ईगो से अपने आप को फॉर्मुलेट करते हो। और अगर आप इस चीज़ को काम करना चाहते हो तो अपने आप को अपने अचीवमेंट से डिफाइन करना बंद कर दो। अपने आप को डिफाइन करो कि आपका कैरेक्टर क्या है, आप लोगों से कैसे बात करते हो, आप कितनी हम्बल हो, आप कितनी गिविंग हो, आप तो अपने से किसी को कंपेयर नहीं करते हो। इन सारे चीज़ों से अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, ना कि आपका जो अचीवमेंट है। क्योंकि अगर आप खुद को देखोगे, एक ये जो पृथ्वी पे आप रहते हो, ये अर्थ पे, इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो आप बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो, और आपका अचीवमेंट उससे भी छोटा है। हम अपने अचीवमेंट से अपने आप को तब देखते हैं जब कुछ गिने चुने लोग, जैसे 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 10 मिलियन, 20 मिलियन पीपल हमको देखते हैं, जानते हैं, हम अचीव सक्सेस हो जाते हैं। इन कुछ लोगों से ही तो हम अपने अचीवमेंट को देख पाते हैं। लेकिन अपने आप को सोचिए कि आप जहाँ पे रहते हो, जिस अर्थ पे रहते हो, वहाँ से आप बस इतनी सी छोटी सी। तो इस सारे चीज़ों को जब आप इवैल्यूएट करोगे, तब आप अपनी ईगो पे काम कर पाओगे। सो दीज आर द 7 प्रैक्टिकल वेज दैट यू कैन अप्लाई, जिससे आप अपनी ईगो को ओवरकम करके एक नया माइंडसेट ला सकते हो, ग्रोथ माइंडसेट, काइंड माइंडसेट, हम्बल माइंडसेट। एंड अगर आपको ट्रैवल कंटेंट देखना पसंद है, ट्रैवल व्लॉग्स, तो आप मेरा ट्रैवल चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। डू चेक इट आउट, आपको बहुत मजा आएगा, आई एम वेरी मच श्योर। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क ऑन योर माइंडसेट एंड लिव अ हैप्पी एंड फ्री लाइफ।